respected Union Home Minister Shri Amit Shah ji, വിശിഷ്ട അതിഥികളെ, പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. മനോരമ ന്യൂസിനും മലയാള മനോരമയ്ക്കും വീണ്ടും ഒരു അഭിമാന ദിവസം വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു. മനോരമ ന്യൂസ് കോൺക്ലേവിന് ഇവിടെ തിരി തെളിയുകയാണ്. എത്ര വേഗത്തിലാണ് എല്ലാം മാറുന്നത്. ആ വേഗത്തിനൊപ്പം എത്താൻ നമ്മുടെ രാജ്യവും സംസ്ഥാനവും കൊതിക്കുന്നു, അതിനുവേണ്ടി കുതിക്കുന്നു. എന്നാൽ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പുരോഗതി ഉറപ്പാക്കാൻ ഈ വേഗം മതിയാകുമോ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനോരമ ന്യൂസ് കോൺക്ലേവ് ഈ വർഷം ഏറ്റെടുക്കുന്ന വിഷയം ഇതാണ്: ഇന്ത്യ, പേസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രസ്. We are privileged to have Amit Shah ji as our chief guest today. He is now the longest serving Union Home Minister of India. Sir, our heartfelt congratulations on this milestone. Amit Shah ji is a leader defined by conviction, one who has steered some of the most significant transformations our nation has witnessed since independence. He has moved forward by decisively rewriting outdated laws and by standing firm in his decisions, even in the face of criticism. We have all seen this unwavering resolve in matters concerning national security, in restoring law and order in Jammu and Kashmir, in combating terrorism, in effectively addressing the challenge of Naxalism, and also in equipping the nation to ward off today's and futuristic threats, especially cyber attacks. While one hand works to secure the nation, the other works to strengthen its grassroots. By also leading the Ministry of Cooperation, he strives to safeguard the lives and livelihood of our farmers and ordinary citizens. For a conclave on India, pace and progress, there is truly no leader more deserving to inaugurate this dialogue. Please join me in extending a warm welcome to Amit Shah ji to the Manorama News Conclave. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയനാണ് കോൺക്ലേവിന്റെ സമാപന സമ്മേളനത്തിലെ മുഖ്യ അതിഥി. ഭാവി കേരളത്തെ കൂടി മുന്നിൽ കണ്ട് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തെ ഈ കോൺക്ലേവിലേക്ക് ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ കോൺക്ലേവിനെ സമ്പന്നമാക്കാൻ വേദിയിൽ എത്തുന്നവരെയെല്ലാം വരവേൽക്കട്ടെ. സംസ്ഥാനത്തെ 3 പ്രധാന പാർട്ടികളുടെ അധ്യക്ഷന്മാർ നമുക്കൊപ്പമുണ്ട്. ശ്രീ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ, ശ്രീ MV ഗോവിന്ദൻ, ശ്രീ സണ്ണി ജോസഫ്. പാർലമെന്റിനെ സജീവമാക്കുന്ന MP-മാരായ ഗൗരവ് ഗൊഗോയ്, അപരാജിത സരാംഗി, പ്രണീതി ഷിൻഡെ. ശ്രദ്ധേയവാർത്താ താരങ്ങളായ ശ്വേത മേനൻ, പ്രകാശ് വർമ്മ, ജീതു ജോസഫ്, ആസിഫ് അലി. ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന AK ഷാജി, AV അനൂപ്, ഡോക്ടർ ടോം ജോസഫ്, ഓർവിൽ ലയണൽ തുടങ്ങിയ അതിഥികൾക്കെല്ലാം സ്വാഗതം. വേദിയിലും സദസ്സിലുമായി ഈ മനോരമ ന്യൂസ് കോൺക്ലേവിന് അർത്ഥം പകരാനെത്തിയ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. താങ്ക് യു. Thank you, sir. Now I request Honorable Minister to inaugurate the conclave by lighting the lamp. And I also invite Mr. Jacob Matthew, Managing Editor, Malayalam Manorama, to kindly join the chief guest.
Thank you, sir. Please be seated. Now, it's time to have the conversation with the Honorable Minister. I invite Mr. Johnny Lucas, News Director, and Ms. Namrata Vijay Ahuja, Bureau Chief, The Week, to join him on the stage. सबसे पहले तो मैं हमारी देश की महत्वपूर्ण और महान भाषा मलयाली में मेरी बात नहीं रख सकता हूं, इसलिए सभी दर्शकों का मन से क्षमा प्रार्थना करता हूं। मित्रों, आज मैं मलयाली मनोरमा के एक कॉन्क्लेव में के उद्घाटन समारोह में आया हूं। तब जो कॉन्क्लेव का विषय रखा गया है, इस पर जरूर बात करना चाहूंगा। 15 अगस्त 47 से लेकर आज तक की आजाद भारत की यात्रा को हम बारीकी से एनालिसिस करते हैं तो बहुत उच्च भावनाओं के साथ मल्टी पार्टी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम को जो हमने एडॉप्ट किया, इसके अंदर आजादी के तीसरे ही दशक से कई दूषण डेमोक्रेटिक प्रोसेस को पॉल्यूट करने वाले दिखाई पड़ते थे। अगर इसको थोड़ा समिंग अप कर बात करनी है तो जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण, ये तीन मुद्दे नासूर की तरह हमारे देश की जनता के जनादेश को प्रभावित करते थे। और चौथा मुद्दा करप्शन, वो देश के प्रोग्रेस को रोक रहा था और जनादेश का मजाक भी उड़ा रहा था। अस्थिरता का माहौल लंबे समय की नीतियों से देश को वंचित रख रहा था। 2014 में नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण, ये तीनों की जगह पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस के नए एरा की शुरुआत देश में हुई है। इसका पूरा देश अनुभव कर रहा है। करप्शन को सिस्टम से और नीतिगत रूप से दोनों प्रकार से दूर करने का एक सफल प्रयास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और चूंकि स्थिरता है, एक लंबे समय की नीतियां, चाहे देश की आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा को सुनिश्चित करना हो, देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का एक नया एरा की शुरुआत करनी हो,
चाहे देश को समृद्ध बनाना, हर क्षेत्र में लॉन्ग टर्म पॉलिसी और क्लियर पॉलिसी के युग की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने की है। और इसी के कारण एक 11 साल का कालखंड पीछे मुड़ कर देखते हैं तो 11 साल पहले देश की जनता के मन में एक सवाल था कि इस देश का भविष्य क्या है। आज 140 करोड़ लोगों के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। सब लोग मानते हैं कि 2047 में भारत विश्व में टॉप पर होगा, हमें कोई नहीं रोक सकता। हम आर्थिक दृष्टि से स्थगितता का शिकार थे। अटल जी 11वें नंबर पर हमारी अर्थतंत्र को छोड़कर गए थे, इकोनॉमी को छोड़कर गए थे। मनमोहन सिंह ने एक अच्छा काम किया कि 11 से 12 पर नहीं गए, संभाल कर रखा। और एक 11 साल में मोदी जी ने 11वें नंबर से हमारी इकोनॉमी को दुनिया में टॉप 4 इकोनॉमी में स्थान दिलाने का काम किया है। हर एक क्षेत्र में, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, नए समय के आने वाले 25 साल की विश्व की इकोनॉमी को प्रभावित करने वाली नई इकोनॉमी में फाउंडर नई टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री में फाउंडर बनना हो, या युवाओं के लिए स्टार्टअप की एक बहुत अच्छी पॉलिसी और सपोर्ट सिस्टम खड़ा कर उनको विश्व के मंच पर प्रोजेक्शन के लिए जगह देनी हो। हर क्षेत्र में नरेंद्र मोदी सरकार ने रिफॉर्म भी किए, फैसले भी लिए, और जीएसटी जैसा असंभव लगने वाला काम भी बहुत अच्छे तरीके से कम विवाद में पूरा किया। और इसके कारण आज हमारे देश की इकोनॉमी टॉप 4 इकोनॉमी में शुमार हुई है। सुरक्षा के मुद्दे पर सेना का संपूर्ण आधुनिकीकरण, सेना के आधुनिकीकरण में आत्मनिर्भरता, देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए कठोर और सातत्यपूर्ण पॉलिसी, और एक प्रकार से तीनों सेक्टर जो 30 साल से कांग्रेस के शासन में देश के लिए चिंता का विषय था, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र, ये तीनों सेक्टर के अंदर आज पूरा देश आश्वस्त है कि बहुत कम समय में हम हमेशा के लिए तीनों समस्या से मुक्त हो जाएंगे। ये विश्वास भरने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। ढेर सारे कॉम्प्लायंसेस नागरिकों के जीवन से दूर कर एक सरल जीवन देना। मुझे याद है कि जब मैं नया एमएलए बना 30 साल पहले, तो मेरे जिम्मे सबसे बड़ा काम होता था कम इनकम का सर्टिफिकेशन करना। आज किसी को जरूर नहीं है, बच्चे के माँ बाप ही सर्टिफाई करते हैं। देश को अपने नागरिक पर भरोसा है, वो झूठ नहीं बोलेगा, कहीं पर जाने की जरूरत। इस प्रकार के ढेर सारे जेल के प्रावधानों को हटाकर पेनल्टी में लाना, पेनल्टी के प्रावधानों को हटाकर चेतावनी में लाना, इस प्रकार के परिवर्तन किए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट पूरा विश्व चकाचौंध होकर देख रहा है कि भारत में ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की कल्पना भी की जा सकती है क्या, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर आज हमने बनाकर दिखाया है। एक कल्पना को जमीन पर उतारा है। केरल की बंदरगाह इसका उदाहरण है। इतने कम समय में दुनिया में सभी लोग प्रशंसा करें इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर की निर्मित, और 11 लाख करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमारे बजट के अंदर जगह करना, ये हमारे अर्थतंत्र को एक नई गति देगा। शांति की दृष्टि से
और विकास की दृष्टि से नरेंद्र मोदी जी के शासन के 11 साल, जब भी देश का इतिहास लिखा जाएगा, विकास का इतिहास लिखा जाएगा, डेवलपमेंट का इतिहास लिखा जाएगा, तब स्वर्णिम अक्षरों से लिखे जाएंगे, इसका मुझे विश्वास है। मुझे इसके साथ साथ एक मलाल भी है। 11 साल पहले केरल जहां था वहीं खड़ा है। केरल के पास ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज है, मगर वो संभावनाओं का दोहन, अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करने के लिए एक विचित्र प्रकार की आइडियोलॉजी जनरेटेड उदासीनता है। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से जो उदासीन डेवलपमेंट का मॉडल खड़ा होता है, वो केरल को रोक रहा है। मैं आशा करता हूं केरल में भी आने वाले दिनों में ये विकास यात्रा के साथ जुड़ने का एक अभियान खड़ा होगा। केरल की जनता भी अपनी डेवलपमेंट की भूख को मत के माध्यम से प्रकट करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। आप सभी का आज के कॉन्क्लेव में मैं स्वागत करता हूं। धन्यवाद। First of all, I extend my heartiest congratulations to Honorable Union Home Minister Amit Shah ji on becoming the longest serving Union Home Minister of India. I would like to mention here today, Amit Shah ji completes 6 years, 84 days in office. His tenure surpasses senior BJP leader Lal Krishna Advani ji's record of 6 years, 64 days. Govind Ballabh Pant, the Congress giant and former Chief Minister of Uttar Pradesh, was the third longest serving Union Home Minister, who spent 6 years, 56 days in office. Amit Shah ji entered public life at the age of 13. He is completing almost half a century in politics soon. Today, he is one of India's most formidable political strategists and administrators. A personal facet worth noting is his warmth in public interactions. I would like to share that in gathering of journalists, whenever Amit Shah ji spots a woman journalist, he makes sure that she is comfortable, she's had her tea and snacks, and gets the space to ask her questions freely. It is a small but telling gesture, and I must compliment Amit Shah ji for it. We are honored to have you here interacting with us today, sir. Now I hand over the floor to my colleague, Johnny Lucas, Director News, Manorama News, the host of Manorama News Conclave 2025. Honorable Home Minister, welcome to our home state. So, you already referred to India's Vikas Yatra. So, we have chosen as the theme of the conclave, India Pace and Progress. So, I would like to ask you about the pace of your own public life. So, the other day you were in the parliament piloting an all-important bill. Today you are among the people. So, what actually motivates you to keep up this pace? सिर्फ मेरे लिए नहीं, 140 करोड़ के भारतीयों के लिए, जब तक हम दुनिया में टॉप पर नहीं पहुंचते, महान भारत की रचना नहीं करते, आराम करने का अधिकार किसी को नहीं है। सतत सबने काम करना है। जब आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाया था, मोदी जी ने लक्ष्य रखा था कि 75 से 100 साल की ये यात्रा 140 करोड़ भारतीयों ने परिश्रम की पराकाष्ठा करनी है और देश को दुनिया में हर क्षेत्र के अंदर टॉप पर पहुंचाने के लिए प्रयास करना चाहिए। और मैं मानता हूं कि आज ये आह्वान जो मोदी जी ने किया था, वो 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प बना है। और वैसे भी साहब, मैं भारतीय जनता पार्टी से आता हूं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं। हम लोग एक ऐसे भारत की निर्माण की कल्पना लेकर चले हैं जिसमें जिस भारत को पूरा विश्व सम्मान करता हो और विश्व में सबसे समृद्ध हो। तो इसके लिए हम किसी को भी, आपको भी, मुझे भी आराम करने का अधिकार ही नहीं। So now entering real politics. So last time when you were in Trivandrum last month, you referred
to the prospects of BJP in the state. So you said BJP would be contesting about 21,000 divisions in the upcoming local body elections, and also 25% vote share. Local election actually is fought on local issues. Are you very confident about reaching this target? देखिए, दो चीजें हैं. हमारे संगठन ने यहाँ बहुत संघर्ष किया है. वामपंथी हिंसा के कारण हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता हमारी आइडियोलॉजी के लिए और केरल की भलाई के लिए अपनी जान गंवाए हैं. सैकड़ों कार्यकर्ता आज अपाहिज बनकर, दिव्यांग बनकर अपना जीवन जी रहे हैं. अभी अभी राष्ट्रपति महोदया ने जिनको एमपी नॉमिनेट किया, सदानंद मास्टर जी, वो इसके जीता जागता उदाहरण है. इनके दोनों पैर काट दिए गए. और ये संघर्ष हमारे कार्यकर्ताओं ने केवल हमारी आइडियोलॉजी के लिए नहीं किया है, हमारी पार्टी की भलाई के लिए नहीं किया है. केरल के विकास की सभी संभावनाओं को एक्सप्लोर कर कर केरल देश की मेन स्ट्रीम में आए और केरल सबसे विकसित राज्य बने, इसके लिए किया है. दुर्भाग्य से यहां से हमारा संगठन का एक्सपेंशन कम था. कम होने का कारण मैंने बताया. इतने अत्याचार करे कोई भय से हमारे संगठन के साथ जुड़ता ही नहीं था. मगर खैर, अब ये संभव नहीं है. हमारा संगठन एक्सपांड हो रहा है और केरल की जनता भी एलडीएफ, यूडीएफ, एलडीएफ डायलेमा से अब बाहर आ रही है. मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि आने वाले चुनाव में, लोकल बॉडीज के चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी 25%, 25% वोट पाएगी और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी शुरुआत होगी. देश में 11 साल से मैं राष्ट्रीय राजनीति में हूं. लगभग 13 साल का था तब से राजनीति में हूं. मैंने कई परिवर्तन ऐसे दिखे, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा त्रिपुरा, जहां हमारे पास 1% वोट था और एक ही चुनाव में हम 2/3 बहुमत के साथ हमारी गवर्नमेंट बनाए थे, 2/3 मेजोरिटी के साथ. आसाम, हमारे पास 2 ही एमएलए थे और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी. केरल में तो खैर हमारा अच्छा खासा बेस है, हमारी आइडियोलॉजी को मानने वाले बड़ी संख्या में लोग हैं. मुझे पूरा विश्वास है इस बार हम 25% वोट निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे और अगले विधानसभा चुनाव में, लोकल बॉडीज में 25%, अगले विधानसभा चुनाव में केरल को यूडीएफ, एलडीएफ के आश्रय पर नहीं रहना पड़ेगा. Sir, when you say that the public doesn't have to only choose between two sides, what is that central theme of the BJP on which you will fight the elections? Also, how are you planning to extend the support base of the party? देखिए, एक तो ये दोनों को केरल की जनता ने देखा है. यूडीएफ के समय में भी जो घोटाले हुए, जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन था, उसको भी देखा है. एलडीएफ के समय में भी जो घोटाले हुए, यहाँ तक कि गोल्ड स्मगलिंग का केस सर्वोच्च जगह की ऑफिस तक पहुंच जाता है. ये केरल की जनता ध्यान से देख रही. कोऑपरेटिव बैंक का घोटाला हो, एक्स लॉजिक्स का घोटाला हो, एआई कैमरे का घोटाला हो, ढेर सारे घोटालों की भरमार है. और मैं मानता हूं कि केरल की जनता करप्शन को पसंद नहीं करती है. दूसरा मुद्दा है राष्ट्रीय सुरक्षा का, नेशनल सिक्योरिटी का और लॉ एंड ऑर्डर का. यहाँ पर वोट बैंक की राजनीति के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा कॉम्प्रोमाइज की गई और मैं फैक्ट बता रहा हूं. और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी कैडर के दबाव में नीचे तक जा रही. कोई मुझे बता सकता है पीएफआई नाम का एक संगठन जो देश विरोधी गतिविधि करते केरल से लेकर उत्तर प्रदेश तक पहुंचा, केरल से लेकर बिहार तक पहुंचा, केरल से लेकर गुजरात तक पहुंचा.
क्यों वो संगठन को समय पर बंद नहीं करती? और मैं दावे से कहता हूं, अगर नरेंद्र मोदी सरकार न होती तो आज भी केरल सरकार पीएफआई को बैन न करती। क्या कभी भी कोई राज्य की जनता ऐसा सहन कर सकती है कि अपनी सत्ता के लिए आप नेशनल सिक्योरिटी में कॉम्प्रोमाइज करें, नेशनल सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट्स को कॉम्प्रोमाइज करें? एक बात मैं आज यहां से केरल की जनता को बताना चाहता हूं। मैं बहुत कम आयु का था तब से सुन रहा हूं, केरल सबसे लिटरेट प्रदेश है, साक्षरता यहां 100% है, तो बेकारी क्यों इतनी है? देश में सबसे ज्यादा साक्षरता भी केरल में है, देश में सबसे ज्यादा बेकारी भी केरल में है, क्योंकि केरल की भौगोलिक स्थिति में के कारण केरल को 2 एडवांटेज हुए, टूरिज्म का और प्रवासियों से जो पैसा वापिस आता है, वो पैसों की इकोनॉमी को जो ताकत मिलती है इसके कारण एक अजीब प्रकार की लेजीनेस यहां आ गई। केरल की जनता चाहती है कि केरल के डेवलपमेंट के लिए यहाँ आईटी की इंडस्ट्री आए, यहाँ सेमीकंडक्टर आए, यहाँ पोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री आए, यहाँ नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री आए। भरपूर पोटेंशियल केरल में पड़ा है, मगर इसको एक्सप्लोर नहीं किया, क्योंकि सब कुछ अच्छा चल रहा है। कैडर की नाकचूड़ से ही हम शासन करेंगे, जनता की भलाई के लिए काम नहीं करेंगे। हमारा लक्ष्य कैडर का भला करना है, जनता की भला करना नहीं है। अब केरल की जनता मान चुकी है कि कैडर के लिए काम करने वाली सरकार नहीं, जनता के लिए काम करने वाली सरकार चाहिए, इसलिए हम सफल होंगे। और मोदी जी ने जो मॉडल देश में बनाया है डेवलपमेंट का, कास्ट लेस पॉलिटिक्स का, एपीसमेंट लेस पॉलिटिक्स का, और वो मॉडल है पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस। मुझे पूरा भरोसा है केरल के युवा किसी भी समुदाय के हो, पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस के साथ जाएंगे और हम निश्चित रूप से हमारे सपोर्ट बेस में पहले बढ़ोतरी करेंगे और फिर यहाँ पर सरकार बने। But sir, as you said, Kerala has a great potential and you would like Kerala to be part of the Vikas Yatra. But at the same time, your government is being accused of withholding disaster management fund allocated to Kerala. So that comes under your ministry. What would you say about that? देखिए, मैं बहुत सारे मिथक फैलाए जाते हैं, मैं डिजास्टर मैनेजमेंट की ही बात करता हूँ। 2004 से 2014 में लगभग 1342 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए केरल को लिया। मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूँ 1342 करोड़, और नरेंद्र मोदी जी ने इस 10 साल में 5100 करोड़ रुपया डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। सवाल, हम जो पैसा भेजेंगे स्टेट गवर्नमेंट के पास आए, अगर स्टेट गवर्नमेंट को भेजा हुआ पैसा अपनी कैडर पर बलि चढ़ता है तो जनता के पास वो नहीं पहुंचेगा, डिजास्टर मैनेजमेंट का काम नहीं होगा। और मैं तैयार हूं, राजीव जी को बुला ले, पिनराई विजयन जी, डिजास्टर मैनेजमेंट के हर एस्पेक्ट पर यूपीए सरकार और बीजेपी सरकार ने क्या किया है, इस पर हम ओपन डिस्कशन के लिए तैयार हैं। सर, रिसेंटली अभी हमने देखा वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट की चॉइस, इट सीम्स टू बी अ साउथ वर्सेस साउथ contest. While the NDA nominee is C.P. Radhakrishnan, Maharashtra governor, we also have the opposition bloc's nominee who's also from the south. What went behind the choice of the NDA candidate? देखिए, आप इसको साउथ वर्सेस साउथ न कहिए, उपराष्ट्रपति समग्र देश का होता है, कोई भी राज्य से आ सकता है, देश के किसी भी जोन से आ सकता है। इसमें इस तरह से सोचना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। परंतु हमारी चॉइस के बारे में मैं बाद में बताता हूं। पहले कांग्रेस पार्टी ने जो चॉइस, कांग्रेस पार्टी की चॉइस के बारे में बताना चाहता हूं। इससे कांग्रेस के केरल में जीतने की जो बची कुछ ही संभावनाएं थी वो नष्ट हो गया है, क्योंकि ऑपोजिशन के प्रत्याशी श्रीमान सुदर्शन रेड्डी
वही है जिन्होंने वामपंथी उग्रवाद को, नक्सलिज्म को मदद करने के लिए सलवा जुडम का जजमेंट दिया था। और सलवा जुडम का जजमेंट न होता तो वामपंथी उग्रवाद 2020 तक समाप्त हो गया। यही सज्जन है जिन्होंने आइडियोलॉजी से प्रेरित होकर सलवा जुडम का जजमेंट दिया है। केरल ने नक्सलिज्म का दंश झेला है, उग्रवाद को भी सहन किया है। केरल की जनता ये जरूर देखेगी कि कांग्रेस पार्टी वामपंथियों के दबाव में किस तरह से अपने ऐसे प्रत्याशी को तय करती है जो वामपंथी उग्रवादी नक्सलिज्म के सपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट जैसे पायस फोरम का उपयोग किए। So while you say that it is not a southward push of the BJP, still we've seen now the issue of delimitation coming up. लोग तैयारी कर रहे हैं सेंसस के लिए, कास्ट सेंसस के लिए, लेकिन जब डीलिमिटेशन का मुद्दा आता है तब रीजनल इम्बैलेंस को लेकर काफी कंसर्न है। ये भी especially in states like Kerala, Tamil Nadu, they are also feeling that if population is the only criteria, are we punishing the South? Are we going to relook the strategy? And how do you think we should approach this issue? देखिए, ये आशंका जो तमिलनाडु में खड़ी की जा रही है वो बेबुनियाद है। ये आशंका खड़ी करने का कारण दक्षिण के राज्यों को अन्याय होगा वो नहीं है, वो तमिलनाडु की जनता का ध्यान इनके बेइंतहा करप्शन के ऊपर से, लॉलेसनेस जो वहां डेवलप हुई है इस पर से, और अपने बेटे को वो सीएम बनाना चाहते हैं स्टालिन जी, इस पर से भटकाना चाहते हैं। अमृता जी, आप मुझे बताइए, ये बात 4 साल पहले भी थी या नहीं थी? मगर नहीं उठाया गया क्योंकि उस वक्त इलेक्शन नहीं था। लोकसभा के इलेक्शन के वक्त भी नहीं उठाया गया क्योंकि उस वक्त इलेक्शन। अभी तो जनगणना होनी है, जनगणना समाप्त होगी 27 में, उसके बाद डिलिमिटेशन एक्ट आएगा। मैं नहीं मानता डिलिमिटेशन की चर्चा अभी से होनी चाहिए। फिर भी जब उन्होंने सवाल उठाया तब मैं दक्षिण के सारे मतदाताओं को और सारे राज्यों के वासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं, जब भी डिलिमिटेशन होगा, मुझे भरोसा है हम ही सत्ता में होंगे, मुझे पूरा भरोसा है, जब भी डिलिमिटेशन होगा दक्षिण के राज्यों को कोई अन्याय नहीं होगा। ये हमारी सरकार का दक्षिण की जनता को वादा है, किसी ने चिंता करने की जरूरत। Hold the mic close. राइट सर। और जब 3 बिल्स जो अभी पार्लियामेंट में हमने देखा इंट्रोड्यूस हुए हैं, एंटी ग्राफ्ट बिल माने जा रहे हैं, इसमें ऑपोजिशन का काफी कंसर्न है। अगेन जब देखा जा रहा है कि वेदर इट्स द प्राइम मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर और द मिनिस्टर्स, इफ दे आर इन जेल फॉर मोर देन 30 days, they have to remove office. We are also seeing powers given to the president and the lieutenant governor to remove them. How are you going to address these concerns? कोई एड्रेस करने की जरूरत नहीं। मैंने देश की संसद में देश की जनता को पूछा है, क्या देश की जनता चाहती है कि कोई भी मुख्यमंत्री जेल में रहकर सरकार चलाए? क्या देश की जनता चाहती है कि कोई भी प्रधानमंत्री जेल में रहकर सरकार चलाए? ये किस प्रकार की चर्चा हो रही है देश में? मेरी समझ में नहीं आता। ये नैतिकता का सवाल है, मोरालिटी का सवाल। और अब कह रहे हैं कि संविधान में पहले क्यों प्रावधान नहीं हुआ? भाई संविधान बना तब ऐसे निर्लज्ज लोगों की कल्पना ही नहीं की गई थी, वो जेल में जाने के बावजूद इस्तीफा नहीं देंगे। 75 साल में दिल्ली में एक घटना हुई, इसके पहले कई सारे मुख्यमंत्री मंत्री जेल में गए, सबने इस्तीफा दे दिया है जेल में जाने से पहले। अब एक घटना हुई कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में जाने के बाद जेल से सरकार चलाते। तो संविधान बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए?
और अब तक बीजेपी की भी सरकार रही, हमने नहीं बदला क्योंकि ऐसी जरूरत नहीं पड़ी थी। अगर केजरीवाल जी इस्तीफा दे देते तो आज भी न बदलते। मगर मैं मानता हूं कि लोकतंत्र के अंदर नैतिकता का स्तर टिकाने की जिम्मेदारी पक्ष और विपक्ष दोनों की। यही राहुल गांधी थे जो 2 साल के बाद, 2 साल की सजा होती है तो पद पर से इस्तीफा देने का जो प्रोविजन है, इसके खिलाफ ऑर्डिनेंस लाए थे लालू जी को बचाने के लिए, मनमोहन सिंह ऑर्डिनेंस। यही राहुल गांधी ने मॉरालिटी का हवाला देते हुए कैबिनेट ने पारित किए हुए ऑर्डिनेंस की कॉपी को सार्वजनिक प्रेस में फाड़ दिया था। आज वही राहुल गांधी जी गांधी मैदान में लालू जी को गले लगाते हैं, और लालू जी को आज जेल हो चुकी है, वो हेल्थ ग्राउंड पर बेल पर बार है। मैं राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्या हो गया जो मनमोहन सरकार का ऑर्डिनेंस आपने खुद फाड़ा था, आज आपकी पार्टी बिल्कुल अभद्रता के साथ संसद के अंदर ये बिल का विरोध कर रही है? क्या हो गया? क्योंकि आप लगातार चुनाव हार रहे और ये किसी पार्टी के लिए नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों को भी ये लागू होगा और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री को भी ये लागू होगा। एक जमाने में इंदिरा जी बिल लेकर आई थी कि हम ऐसा संवैधानिक सुधार किया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 39, कि प्रधानमंत्री पर केस नहीं हो सकता चुनाव के बारे में। और ये प्रधानमंत्री ऐसा है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ऐसा है जो अपने आप को कानून के दायरे में डालता है, और ऑपोजिशन इसका विरोध कर रही है। मुझे तो मालूम नहीं है कैसे चुनाव फेस करेंगे। देश की जनता उनको पूछेगी क्या सरकारें जेल में रहकर चला सकता है कोई? क्या चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, सेक्रेटरी होम मुख्यमंत्री के पास जेल में फाइल साइन कराने जाएंगे? और वो दृश्य किस प्रकार का होगा? मोरालिटी को कितना नीचे गिराना चाहते हो? और मैं तो अभी भी अपील करता हूं ऑपोजिशन को, हमने तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई है, जेपीसी बनाई है, आप आइए, आपके सुझाव दीजिए, परंतु नैतिकता के मूल्यों को ऊपर उठाने के लिए आप भी सहायता करिए। Sir, in that context, another political question again on Rahul Gandhi. He has alleged vote story and some kind of collusion between the election commission and the government. So, what is your take on that? Do you think that that undermines people's faith in the election process? देखिए, राहुल जी जब से कांग्रेस के मुखिया बने हैं तब से हर एक संवैधानिक संस्थाओं को वो शक के दायरे में लाने का काम करते हैं। अभी जो SIR हो रहा है वो 2003 में भी हुआ है, 2061 में भी हुआ था, 2070 में भी हुआ था। अब क्या प्रॉब्लम है? और अगर SIR से किसी भी नागरिक को या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दिक्कत है तो असेंबली के रिटर्निंग ऑफिसर के सामने वो अपील कर सकते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के सामने भी अपील कर, अगर संतुष्ट नहीं है तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को अपील कर सकते हैं, और इससे भी संतुष्ट नहीं है तो चीफ इलेक्शन ऑफिसर स्टेट को भी अपील कर सकते हैं। 3 स्टेज रखे हैं। फॉर योर इंफॉर्मेशन, रोड पर यात्रा निकाल रहे हैं, आज तक SIR पर एक भी कंप्लेंट कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया है, एक भी कंप्लेंट नहीं की। जो कंप्लेंट का फॉरम बनाया है वहां कंप्लेंट नहीं करना और जनता के बीच में डाउट क्रिएट करना, मैं नहीं मानता इस पॉलिटिक्स से बिहार और देश की जनता जानकारी नहीं रखती है, सब समझते हैं। Well, are there plans to hold the SIR in other states also? जी, ये इलेक्शन ये हमें नहीं करना है, इलेक्शन कमीशन ने करना है। इलेक्शन कमीशन ने पूरे देश में SIR करने का फैसला किया है, वो रेगुलर
एक्सरसाइज है। अब बिहार की मतदाता सूची में 22 लाख लोग ऐसे थे जिनकी मृत्यु हुई थी, तो उनके मत का प्रयोग बोगस हो सकता है, ऐसी संभावना बनती, तो उनके नाम हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए? एक कॉमन सेंस का सवाल है। इस देश में कई सारे लोग केरल से गुजरात जाएंगे, कोई मुंबई से केरल रहने आएगा, तो वो अपने वोट का एक्सरसाइज नहीं कर पाता है। जो केरल आया है उसको केरल में वोट देने का अधिकार है या नहीं है? और मुंबई गया है तो यहां से कट जाएगा, मुंबई में रजिस्टर्ड होगा। ये एक्सरसाइज 1 दशक 2 दशक के बाद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? इतनी सिंपल बात है। अब इसको वो पब्लिक को गुमराह करने का काम करें। मैं नहीं मानता कि देश की जनता इतनी मैच्योर है कि इस तरह की चीजों को मानेगी, और हम भी जाएंगे जनता के सामने। अभी तो केस सुप्रीम कोर्ट में है, खैर बाद में हम भी जाएंगे जनता के सामने कि किस तरह से संवैधानिक संस्थाओं के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए भाषा का प्रयोग हो रहा है, वो ठीक नहीं है। सर, इसमें ऑपोजिशन का एक छोटा मेरा क्वेश्चन है, चार्ज है दैट इट इज अ कोल्यूजन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द इलेक्शन कमीशन। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दिस चार्ज? देखिए, वो चार्ज मुझे नहीं, उनको रिस्पॉन्ड करना है। वो इलेक्शन कमीशन को अपनी बात रखे। अगर इलेक्शन कमीशन सुनवाई नहीं करेगा तो एक्सपोज हो जाएगा, मगर वो तो इलेक्शन कमीशन में जाते ही नहीं है, वो रोड पर जाते हैं। अब रोड पर करी हुई बात को इलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। मैं कांग्रेस में तो होगा नहीं, मगर बाहर की सारे विपक्षी दल को अपील करना चाहता हूं कि आपको प्रोसीजर में जो कुछ भी डिफेक्ट लगे, इलेक्शन कमीशन के सामने जाइए और अपना पक्ष रखिए। There has been much debate on one nation, one poll. Do you believe this is practical, and what impact would it have on governance and development? देखिए, जहां तक मेरी पार्टी और मेरा सवाल है, हम मानते हैं प्रैक्टिकल है, और इसीलिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इस पर विचार कर रही है। अगर प्रैक्टिकलिटी की दृष्टि से या लोकतंत्र के सिद्धांतों की दृष्टि से कहीं पर भी कोई तकलीफ लगती है, तो वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में विषय रख सकते हैं, वहां चर्चा कर सकते हैं। मगर देश में कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म लाना ही नहीं, और सालों सालों तक कोड ऑफ कंडक्ट के कारण डेवलपमेंट के काम रुके रहे, ये पद्धति कितने हद तक योग्य है? और मैं अलग कहता हूं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन से अगर तकलीफ होनी है तो हमें भी तो होगी, बीजेपी को भी होगी, ये सभी दलों के लिए है, एट पार है सभी लोग। क्या डर है इसे? So let me ask one Kerala specific question. So Kerala has a huge minority population. I think they account for about 45 to 50% of Kerala population. So they have some apprehensions about the BJP's understanding of their concerns and also BJP's approach. How would you address it? देखिए, देश के तो 2/3 हिस्से में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का शासन है, 2/3 हिस्से में। और मैं मानता हूं सबसे ज्यादा माइनॉरिटी की आबादी केरल में नहीं है, संख्या में, नंबर्स में सबसे ज्यादा माइनॉरिटी उत्तर प्रदेश में, बिहार में है। क्या हो रहा है वहां पर? क्या तकलीफ है? 2014 में भी कहते थे कि बीजेपी आएगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ भाई। क्या हुआ केरल में? जिनके पास परफॉर्मेंस बताने के लिए कोई लंबी सूची नहीं है, जिनका पर्सनल बायोडेटा बड़ा वीक है, वो लोग इस तरह की चीजों को फैलाते हैं। मैं केरल की जनता को और विशेषकर माइनॉरिटी समुदाय को आश्वस्त करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब भी बनेगी, संविधान के हिसाब से चलेगी और सबके अधिकार को बनाकर रखेगी। I would ask you a question about Manipur also in this context, because you see Manipur has seen deep divisions,
ethnic divide is still there. So how important is bridging this ethnic divide there? देखिए, मणिपुर में जब हिंसा हुई तो उसके अगले दिन भाजपा सरकार नहीं आई थी। पहले मैं चीजों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मणिपुर में 6 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली। 6 साल में एक भी बंद नहीं हुआ, एक भी हड़ताल नहीं हुई, टेररिज्म समाप्त था और एथनिक हिंसा, नस्ली हिंसा भी नहीं हुई। मगर एक कोर्ट के फैसले के कारण नस्ली हिंसा भड़क गई। मणिपुर में नस्लीय हिंसा का बहुत पुराना इतिहास है। कांग्रेस के समय में इससे भी ज्यादा नस्ली हिंसा हुई है। मैं जस्टिफाइड करने के लिए नहीं कह रहा हूं, हिस्ट्री बताने के लिए कह रहा हूं। हर बार 1 साल, 1.5 साल, 2.5 साल चला है, अब वहां पर शांति है। भारत सरकार का गृह मंत्रालय दोनों समुदायों को पहले अकेले 4-4 बार मिला है, फिर दोनों की जॉइंट मीटिंग भी हमने कराई है और मैं आशा करता हूं कि कुछ ही समय में नॉर्मल सिचुएशन लाने में हमें सफलता मिलेगी। हमारा सबसे पहला काम था पीस को रिस्टोर करना। जब तक पीस रिस्टोर नहीं होती है तब तक दोनों के बीच का खाई है, गैप है, वो भर नहीं सकता है। पीस रिस्टोर करने का काम अब समाप्त हुआ है, मगर मैं फिर से एक बार स्पष्ट करना चाहता हूं कि मणिपुर की हिंसा का धर्म के साथ, रिलीजन के साथ कोई लेन देन नहीं है। ये एथनिक वायलेंस है, नस्लीय हिंसा है। इसको अलग प्रकार से बदनाम नहीं करना चाहिए। सब नॉर्थ ईस्ट के बाद अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, ऑपरेशन सिंदूर में हमने सक्सेस देखा, बट आज की डेट में हाउ इज द सिक्योरिटी सिचुएशन इन जम्मू एंड कश्मीर? देखिए, सिर्फ कश्मीर नहीं, मैं कश्मीर पर बाद में आता हूं। मैंने जैसे पहले शुरुआत में कहा, 3 क्षेत्र इंटरनेशनल और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए नासूर बने हुए थे। नॉर्थ ईस्ट, वामपंथी उग्रवाद और जम्मू कश्मीर। मैं तीनों क्षेत्र की संयुक्त बात करूं तो हिंसा की घटनाओं में लगभग 70% डिक्रीज है, मृत्यु में भी 70% डिक्रीज है और सिक्योरिटी फोर्सेस के मृत्यु में 74% डिक्रीज है। तीनों जगह स्थिति सामान्य हो रही है। एक बहुत दुर्गम बॉर्डर है वहां पर, भारत और पाकिस्तान के बीच में। एक पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भी है वहां पर, तो यूनिक प्रकार की बॉर्डर है वहां पर। पाकिस्तान के लिए सरल है इतने नदी नालों का उपयोग कर कर वहां से आतंकवादियों को भेजना। मगर मैं एक बदलाव जो मोदी जी के समय में आया है, देश की जनता को बताना चाहता हूं। पहले पाकिस्तान से आतंकवादी भेजने की जरूरत नहीं थी, यहीं के लड़कों के हाथ में हथियार थमाते थे। अब स्थिति ये आई है कि यहाँ का रिक्रूटमेंट 2024 और 25 में लोकल कश्मीरी लोगों का रिक्रूटमेंट टेररिज्म में 0 हो चुका है। आपने देखा होगा, पहले आए दिन पत्थरबाजी की घटनाएं दिखती थी, 4 साल से पत्थरबाजी नहीं दिख रही। पहले रोज पाकिस्तान से बंद का कॉल आता था, घाटी बंद हो जाती थी। अब कोई पाकिस्तान के कॉल को पढ़ता ही नहीं। हमने एक मजबूत इकोसिस्टम टेररिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए बनाया है और इसके नतीजे आए हैं। और 3 बार पाकिस्तान ने मोदी जी की सरकार आने के बाद प्रयास किया। पहले उरी में किया, फिर पुलवामा में किया, फिर पहलगांव में किया। तीनों बार हमने मजबूत जवाब दिया है। पहले सर्जिकल स्ट्राइक करी, फिर एयर स्ट्राइक करी और इस बार ऑपरेशन सिंदूर कर न केवल पाक ऑक्यूपाई कश्मीर, पाकिस्तान के अंदर घुसकर इनके हेडक्वार्टर को तोड़ने का काम भारत की सेना ने किया है। मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी सफलता है, पूरी दुनिया में एक संदेश गया है। और इसके साथ साथ हमने ऑपरेशन सिंदूर कर जहां इसकी प्लानिंग होती थी, ट्रेनिंग होती थी, हेडक्वार्टर थे लश्कर तोयबा और जैसे मोहम्मद के, उसको तो तोड़ा ही तोड़ा। परंतु जिन्होंने यहां गोली चलाई थी वो तीनों आतंकवादियों को ऑपरेशन महादेव में
हमारे सुरक्षा बलों ने समाप्त कर दिया। एक प्रकार से कठोर मैसेज पाकिस्तान में भेजने का काम हमने किया है। और मैं आज फिर से कहता हूं देश की जनता को, ये तीनों सेक्टर कुछ ही समय में आतंकवाद से मुक्त हो गए। नरेंद्र मोदी सरकार की पॉलिसी है जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म। हमने पीएफआई पर बैन लगाया है, हमने ढेर सारी चीजें करी हैं। एनआईए को मजबूत किया है, यूएपीए के कानून को मजबूत किया है, सभी एटीएस के एक समान एसओपी बनाने का काम, ढेर सारे काम टेररिज्म को समाप्त करने के लिए। और एक जमाने में किसी भी शहर में कभी भी धमाका हो जाता था। मोदी जी के आने के बाद कश्मीर में पाक प्रेरित टेररिज्म छोड़ दीजिए, तो बाकी के हिस्से में कहीं पर भी वो कोई घटना करने में सफल नहीं हुए। और ये हमारी बहुत बड़ी सफलता है। और हमसे बड़ी सफलता हमारे सुरक्षा बलों की है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की। आपने ऑपरेशन महादेव का जिक्र किया। ऑपोजिशन ने सवाल उठाए कि चॉइस ऑफ द नेम्स ऑफ द ऑपरेशन, इसका नाम ऑपरेशन महादेव क्यों रखा गया? ये लोग खामे खा सवाल उठा रहे। आज भी हम मानो मराठा रेजिमेंट का नारा क्या है? हर हर महादेव। सिख रेजिमेंट का नारा क्या है? जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। अब मुझे एक बात, हर चीज में क्यों इस तरह से सोचते हैं? और मुझे लगता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को हर चीज की स्वतंत्रता होनी चाहिए, अपने अभियान का नाम चुनने की, अपने अभियान का समय चुनने की, और अपने अभियान का तरीका चुनने की। इसमें इलेक्टेड विंग ने दखल नहीं करना चाहिए। So, sir, one personal question. So, you have been at the heart of BJP's growth story for the last 3 decades. So, what do you think is the most significant contribution that you made for the rise of BJP? मेरा कोई रोल नहीं है। मैं बूथ के कार्यकर्ता जितना ही जिम्मेदार कार्यकर्ता हूं, और हमारे करोड़ों कार्यकर्ताओं की तरह मोदी जी के नेतृत्व में देश के विकास के लिए और मेरी पार्टी को मजबूत करने के लिए दिन रात मेहनत करता हूं। So you have led major reforms of India's criminal justice system under the Bharat Nyaya laws. Has the name only changed, or are there changes on ground? And how is the common man benefiting from it? देखिए, नाम तो बदलना ही चाहिए। देश आजाद हुआ, इसके बाद इतने सालों तक देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को गवर्न करने वाले तीनों कानून इंग्लैंड की पार्लियामेंट में पारित हुए थे। और वो कानूनों का सेंस जो था, इंग्लिश सरकार को भारत में मजबूत करने का था। उनका सेंस हमारे नागरिकों की सुरक्षा नहीं था, इसीलिए इंडियन पिनल कोड नाम दिया। हमने भारतीय न्याय संहिता नाम दिया। भारत के नागरिक को न्याय मिलना चाहिए। ये सिर्फ नाम का सवाल नहीं है, इसके अंदर हमने ढेर सारे परिवर्तन किए हैं। मैं आज आपके माध्यम से केरल की जनता को बताना चाहता हूं कि जब ये तीनों कानून 100% इंप्लीमेंट हो जाएंगे, ये दुनिया के सबसे आधुनिक कानून होंगे। इसके अंदर आने वाले कई सालों तक की टेक्नोलॉजी को समाहित करने के लिए लीगल डेफिनेशन का समावेश किया है। ऑनलाइन पूरी ट्रायल होगी, ऑनलाइन पेशी होगी। ढेर सारे प्रावधान ऐसे किए हैं जिससे एफआईआर होने से 3 साल के अंदर नागरिक को न्याय मिल जाएगा, सुप्रीम कोर्ट तक। ये जो बार बार कोर्ट जाना पड़ता है, इसके कारण विश्वसनीयता खत्म हुई। हिंदी पिक्चर में कई फिल्में बन गई, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे। इससे बचने के लिए कानून हमने जुडिशरी, प्रोसिक्यूशन मतलब पुलिस, और जिन पर आरोप है आरोपी, तीनों लोगों को समय की मर्यादा में बांधा है। पूरा टेक्नोलॉजी से लैस
एक न्यायिक व्यवस्था बनाने के लिए हमने किया है। भारत सरकार इस पर लगभग 30,000 करोड़ रुपया खर्च कर रही है, जिसमें से 12,000 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। और 7 साल की सजा के लिए हमने FSL को कंपलसरी किया है, इससे सजा का दर बढ़ेगा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए पूरा चैप्टर खोला गया है। आतंकवाद की आज तक इस देश में व्याख्या ही नहीं थी, कोई व्याख्या नहीं थी। किसको टेररिज्म कहोगे, हमने व्याख्या करा है। कांग्रेस पार्टी जिसका कहती थी मॉब लिंचिंग, हमने उसको प्रोविजन में डाल दिया है। जो कहते थे कि राजद्रोह का केस चल गया, राजद्रोह का केस चल गया, वो कर कर देशद्रोह लाए। तो राजद्रोह का मतलब व्यक्ति के सामने आप अभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इनके खिलाफ नहीं बोल सकते। अब हमने देश के खिलाफ नहीं बोल सकते वो बोला है। तिरंगे का सम्मान करना पड़ेगा, ये लेकर आए, मेरी पार्टी के झंडे का नहीं। और ये परिवर्तन कांग्रेस को नहीं दिखाई पड़ेंगे और सैकड़ों लोग यहां से भाग जाते हैं। तो ट्रायल इन एब्सेंसिया का भी प्रोविजन हमने किया है। हमने टेररिज्म की व्याख्या के साथ साथ इसको सजा कराने की पद्धति भी और कड़ी करी है। तो ढेर सारे बदलाव हुए हैं। मैं मानता हूं कि आने वाले 3 सालों में जब इसका कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में आमूलचूल परिवर्तन आएगा। और मैं पक्के भरोसे से कहता हूं 21वीं सदी का ये सबसे बड़ा रिफॉर्म है जो सबसे ज्यादा लोगों को राहत देगा। तो आपने काउंटर टेरर लॉज की बात करी, आपने बात करी कि कितने ऑर्गेनाइजेशंस को भी बैन किया जो UAPA में इम्प्लिकेट हुए। एट दिस जंक्चर कंसर्न्स क्या है और क्या आपको लगता है टेररिज्म खत्म हो सकती है? निश्चित रूप से हो सकता है, और इतना तो हो ही सकता है कि इसके खिलाफ की इकोसिस्टम मजबूत करने से इसकी मात्रा को शून्य के बराबर कर सकते हैं। अगर कहीं इक्का दुक्का घटना हुई तो सीरीज ऑफ इंसिडेंट नहीं होंगे, और वो इक्का दुक्का घटना को भी हम समाप्त करेंगे। क्योंकि हमने सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन बैन नहीं किए, नॉर्थ ईस्ट में हमारे देश के जो लोग थे इनके साथ हमने 20 से ज्यादा समझौते करे हैं। आप मान सकते हैं 10,000 यूथ हथियार डालकर आज मेन स्ट्रीम में वापिस आया। विगत 1.5 साल में 2200 के आसपास माओ नक्सली हिंसा करने वाले लोग पकड़े गए या सरेंडर हुए। हमारा उद्देश्य शांति प्रस्तापित करना है। गलतियों को स्वीकार कर कर जो प्रशासन के सामने आएगा उसको हम मेन स्ट्रीम में लाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। परंतु जिसके हाथ में हथियार है इसके साथ बात नहीं हो सकती। हथियार हाथ में रखकर बातचीत का मतलब है कि आप ब्लैकमेल करें। बातचीत तभी हो सकती है जब आप कॉन्स्टिट्यूशन के 4 कॉर्नर के अंदर आकर बात करोगे, हथियार डालकर बात करोगे। ये हमारी फर्म नीति है। So, Namrata, before concluding this open-hearted discussion, I would like Amit Shah ji to ask a question about Narendra Modi ji. So, Narendra Modi ji, his birthday is coming up next month. He will be 75. So, you have worked with very closely for the last several decades. So, what, according to you, defines his style of leadership? देखिए, नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व पूरा देश जानता है, मगर मोदी जी ऐसे व्यक्ति है कि बहुत युवा अवस्था है से अपना परिवार छोड़कर, घर छोड़कर, खुद की हितों को छोड़कर देश की सेवा में लगे। लंबे समय तक RSS का काम किया, फिर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। शायद एक ही मुख्यमंत्री ऐसा है कि जो पंचायत का भी चुनाव नहीं लड़ा था, सीधा मुख्यमंत्री बना दिया गया। देश में शायद ऐसा कोई भी मुख्यमंत्री नहीं है। वो पंचायत का भी चुनाव नहीं लड़े थे, ऑर्गेनाइजेशन का काम करते थे, मुख्यमंत्री बने, सबसे सफल मुख्यमंत्री बने, सबसे सफल प्रधानमंत्री बने और लॉन्गेस्ट टर्म सर्विंग राज्य का और देश का नेतृत्व करने वाले नेता बने। सेल्फलेस आदमी है, बहुत अच्छे लिसनर है, और परिवारवाद के जमाने में मैंने उनके परिवार को देखा है किस तरह से जी रहा है। बहुत कम उदाहरण देश में होंगे
और उदाहरण ढूंढना है तो 3-4 दशक पहले चला जाना पड़ेगा। आज के समय में ढूंढना भी दिक्कत है। दामादों का तो यहाँ पर तांता लगा है, बेटों का तांता लगा है। उस जमाने में आज ये पूरे सभागार में कोई नहीं कह सकता कि मैं नरेंद्र मोदी की फैमिली में से एक भी व्यक्ति को जानता हूं। इतने कड़े सार्वजनिक जीवन के नॉर्म्स अपने जीवन में पालन करना बहुत कठिन होता है, और मैं मानता हूं इनका अपना कोई नहीं है, सभी इनके अपने हैं। 140 करोड़ लोग उनके हैं। ये थ्योरी से साच अर्थ में जीना ये बहुत कठिन होता है। मैंने बहुत नजदीक से देखा है। हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी को 100% कमिटमेंट है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए 100% सम्मान है। कार्यकर्ताओं के प्रति जबरदस्त सम्मान और संवेदना है, और देश के गरीबों के लिए, पूरे देश को ही गरीबी मुक्त करने की हिम्मत के साथ वो काम में लगे हैं, और देश की सुरक्षा को भी उन्होंने सुनिश्चित किया है। ढेर सारे काम ऐतिहासिक मोदी जी के समय में ही हुए, चाहे राम मंदिर बनाना हो, चाहे धारा 370 को हटाना हो, चाहे सीए लाना हो, चाहे PA5 पर बैन लगाना हो, चाहे टेररिज्म, नक्सलिज्म, नॉर्थ ईस्ट को क्लियर करना हो, पाकिस्तान को मुंह को तोड़ जवाब देना हो, और 27 से ज्यादा देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत को दिलाना हो, ये सब नरेंद्र मोदी जी ने 11 साल में किया है। मैं मानता हूं कि ये पूरे देश में आज इनकी जिस तरह से स्वीकृति है, ये आने वाले दिनों में राजनीति में काम करने वाले सभी युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेंगे। करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनेंगे। अभी एक बड़ा चैलेंज है, आपने बात करी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने फार्मर्स को लेकर US टैरिफ प्रेशर को बिल्कुल दूर रखा है। अगर ये सोल्यूशन नहीं आता है, हाउ विल द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर बी प्रोटेक्टेड, और इसकी कोई नीति है? देखिए, किसी भी प्रकार का व्यापारिक समझौता मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत के हितों के ऊपर जाकर नहीं होगा, भारत के हितों को अवहेलना कर नहीं होगा, इग्नोर कर नहीं होगा, और फार्मर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो हम जो भी करेंगे भारत के इंटरेस्ट के कंसिडरेशन के साथ ही करेंगे। सर, एक इशू क्लोज टू योर हार्ट इज बिल्डिंग ऑफ द इंडिया साइबर शील्ड। स्टेट्स में अगर देखा जाए, अभी भी हेल्पलाइंस नहीं बनी है, लोग फोन करते हैं तो भी उनका इशू रिजॉल्व नहीं होता। जिस तादाद पे डिजिटल क्राइम्स हो रहे हैं, उस तादाद पे क्या आपको लगता है बढ़ रहा है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, या कोई जरूरत है स्टेट्स में काम अभी ही करने की? पिनराई विजन जी को पत्र लिखा है कि 1930 को स्ट्रेंथी करिए। बहुत सारे केरल के कॉल मिस कॉल जा रहे हैं। हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, हम इसको पॉपुलर कर रहे हैं, मगर लॉ एंड ऑर्डर राज्य का सब्जेक्ट है। राज्यों ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ये साइबर फ्रॉड के लिए मजबूत करना पड़ेगा। बाकी पूरी इकोसिस्टम तैयार है। 1930 पर कॉल आते ही 5 मिनट तो बहुत ज्यादा है, कुछ ही सेकंडों में जहां पैसा पड़ा है वहां फ्रीज हो जाएगा। तो मैं तो जनता को भी कहना चाहता हूं, दुर्भाग्य से कभी भी साइबर फ्रॉड का सामना करना पड़े तो 1930 जरूर डायल करिए। और पिनराई जी को भी कहता हूं कि 1930 के कॉल सेंटर में पर्याप्त लोगों को आप बिठाइए। The left-wing extremism was once seen as the biggest internal security threat. We are also looking at another target of the government, which is to March 2026. Do you think there will be an end of Naxal जिस तरह से हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि मेरी दी हुई समय मर्यादा से पहले ये काम हो जाएगा और ये देश नक्सलवाद से पूर्णतया मुक्त हो जाएगा। If we have time, we have another ministry and we have some questions. Yes. Because if Home Minister has time, okay, we can continue. Otherwise, we can conclude. I think he has an
बहुत हो गए, आपके भी दूसरे वक्ता होंगे। Yeah. मुझे भी एक कार्यक्रम है, राजीव जी कब का इशारा Okay, कर रहे हैं so मुझे then, Namrata, समाप्त करने का। then you may please तो conclude. मैं हृदय पूर्वक मलयाली मनोरमा का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझे यहाँ बुलाकर आप सबके बीच में केरल की जनता के साथ संवाद करने का मौका दिया। और फिर से एक बार मैं मलयाली नहीं बोल सकता, इसलिए केरल की जनता की क्षमा मांगकर मेरी बात को समाप्त करता हूँ। I must thank Union Home Minister Amit Shah ji for taking all our questions and answering in a very frank manner. I think all of us have got a lot of insight into issues concerning national security and the way forward with the government. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you all. Thank you, Minister Sir, for those inspiring words. Thank you, Johnny Sir and Namrata. Finally, to present a token of appreciation to the Honorable Minister, I invite Mr. Maman Matthew, Chief Editor, Malayalam Manorama, onto the stage.